اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے رمضان، سخاوت کا موسم بہار۔ میں آج کی گفتگو کا آغاز سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے کرنا چاہتی ہوں۔ فرماتے ہیں کان رسول اللہ اجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة۔ بخاری کی روایت ہے 2308 نمبر پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی انسان تھے، اور رمضان میں جب سیدنا جبریل علیہ السلام آپ کو آ کر ملتے تو آپ بہت زیادہ سخاوت کرتے، اور جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے اور آپ سے دورہ قرآن کرتے تھے۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبریل علیہ السلام ملتے، آپ بھلائی میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ رمضان کے مبارک دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں عبادت کا خصوصی اہتمام فرماتے، وہاں آپ کی سخاوت بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں تیز ہواؤں کے چلنے سے بھی زیادہ تیز خرچ فرماتے۔ رات کے لمحات میں آپ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے اور دن کے اجالے میں تند و تیز ہواؤں سے بھی زیادہ سخاوت کرتے۔ سخاوت عظیم عبادت ہے، دن میں کی جائے یا رات میں، اعلانیہ کی جائے یا پوشیدہ، اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف دو آدمیوں پر رش کرنا جائز ہے۔ ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا کیا، یعنی اسے تلاوت اور عمل کی توفیق دی، اور وہ اس کے ساتھ رات اور دن کی گھڑیوں میں قیام کرتا ہے، اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمائی اور وہ اسے اللہ کی راہ میں رات اور دن کی گھڑیوں میں خرچ کرتا ہے۔ یہ دونوں کام بڑی فضیلت اور عظمت والے ہیں، قابل رشک ہیں وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا اجر عطا فرمائے گا۔ جو دل کھول کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کئی گنا اضافے کے ساتھ واپس کر دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ سخاوت انسان کو خود نفع دیتی ہے۔ رب العزت نے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو اچھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا فائدہ تم خود پاؤ گے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ تم جو کچھ خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا اور تمہارا حق نہیں مارا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، اضافہ ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، مال میں خیر و برکت ہوتی ہے، درجات بلند ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی کی 1625 نمبر روایت ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی چیز بھی خرچ کرے تو اس کے لیے وہ چیز 700 گنا بڑھا کر لکھی جاتی ہے۔ اللہ کی راہ میں سے مراد جہاد کے لیے یا دین کی تعلیم و تبلیغ کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ یہ زندگی کا ساز و سامان سب اس کی عطا ہے۔ اس کا شکر ادا کرنے کا حق یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسی کے قدموں میں ڈال دیں، اسی کے لیے خرچ کریں۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے حوالگی کی علامت ہے۔ انسان جو کچھ کماتا ہے اسی لیے کماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہاتھ دیے، پاؤں دیے جن سے وہ عمل کرے، اس کو دماغ دیا جس سے وہ سوچے، منصوبے بنائے، اس نے آنکھیں دیں، زبان دی جس سے وہ دیکھے اور بولے۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسے انسان اپنے کام میں لاتا ہے۔ اگر ایسا ہو کہ جسم اور دماغ کی قوتیں ہوں لیکن انسان ان سے فائدہ نہ اٹھائے، اگر
गंदम की फसल गंदम के बीज बोने के बावजूद ना उगे, बल्कि उसकी बजाय कंकर उगाएं, तो इंसान के लिए जमीन से अपनी खुराक हासिल करना कैसे मुमकिन होगा? अगर अल्लाह ताला का बनाया हुआ निजाम काम न करे, तो ना हमारे लिए पानी हो, ना गिजा हो, ना बिजली हो, ना सवारियां हो। दुनिया में इंसान जो कुछ कमाता है वो अल्लाह ताला का एहसान है। उसका बदला यह है कि इंसान अपनी कमाई को अल्लाह ताला के दीन के रास्ते में खर्च करे, वो उससे अल्लाह ताला के कमजोर बंदों की मदद करे, अल्लाह के रास्ते में दी हुई दौलत को अल्लाह ताला के बताए हुए तरीकों में लगाए। और अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च वो है जो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए हो, शोहरत और इज्जत या बदला पाने के लिए ना हो। इंसान माल खर्च करता है अल्लाह ताला के रास्ते में, तो कितनी बलाएं टलती हैं, अल्लाह ताला उसे मुसीबतों से बचाता है। और अल्लाह की राह में दिया हुआ माल वो है जिसको आखिरत की मुसीबतों से नजात पाने के लिए दिया जाता है। अल्लाह ताला हमें सखियों में शामिल फरमाए, देने वाला हाथ बनाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सखी इंसान अपने रब के भी करीब है, लोगों के भी करीब है, जन्नत के भी करीब है और जहन्नुम से दूर है। और बखील इंसान अपने रब से भी दूर है, लोगों से भी दूर है, जन्नत से भी दूर है, जहन्नुम के करीब है। रमजान रब के करीब होने का मौसम है। रमजान इंसानों के दुख बांटने का मौसम है। रमजान जन्नत के करीब होने का मौसम है। रमजान जहन्नुम से नजात पाने का मौसम है। माह रमजान सदका देने वालों का मौसम है। ये महीना अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करने वालों का मौसम है। अल्लाह ताला की राह में खर्च करना, सदका देना किस कदर खैर वाला काम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के दो फरिश्ते हर सुबह मुनादी करते हैं। उनमें से एक कहता है, इलाही खर्च करने वाले को 2 गुना दे। दूसरा कहता है, इलाही बखील के माल को जाया कर दे। अल्लाह अकबर। इलाही हमें सखियों में शामिल फरमा लेना। जब बंदा अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करता है तो अल्लाह ताला उसे जिस्मानी और दिली सुकून अता करते हैं, रिस्क में फरावानी अता करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका गुनाह को बुझा देता है जिस तरह आग पानी को बुझा देती है। जब बंदा गुनाह करता है तो दिल में आग सी लग जाती है, जिंदगी में ये आग भड़कने लगती है। इस हरारत को, इस गर्मी को सदका और खैरात ही मिटाते हैं। सदका दिल में ठंडक उतार देता है। सदका रूह में पाकीज़गी पैदा करता है और गुनाहों को जड़ से उखाड़ फेंकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शख्स कयामत के दिन अपने सदक़े के साये में होगा, यहाँ तक कि लोगों के दरमियान फैसला कर दिया जाएगा। कयामत के दिन सदक़े का साया दराज होगा। नसीब वाले सदक़े का साया पाएंगे। जिसने दुनिया में जितना सदका किया होगा उसे उतना ही साया नसीब होगा। सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान मालो दौलत वाले थे। उन्होंने अपना माल अपने रब की रजा के लिए खर्च किया। ग़ज़वे तबूक में जाने के लिए लश्कर की तैयारी की, मुसलमानों के लिए बेरे रोमा को खरीद कर वक्फ किया। उन्होंने सदका दिया, अतियात दिए ताकि अल्लाह ताला राजी हो जाए। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ बड़े मालदार सहाबी थे। उन्होंने एक मरतबा 70 ऊंटों पर लदा हुआ सामान मदीना के जरूरतमंदों पर खर्च किया। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। रमजान सखावत का, सदका करने का मौसम है। रमजान में भूखे को खाना खिलाना किस कदर आसान है, क्योंकि बंदा खुद भूख का तजर्बा करता है, मिस्कीन की मदद करने को जी चाहता है, फकीर की दाद रसी करने के लिए इंसान अपने दिल के अंदर रग़बत महसूस करता है। रोज़ा रखने वाले ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने लिए रोटी का टुकड़ा, दूध का घूंट और खजूर तक नहीं पाते। ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास घर नहीं, सफर के लिए सवारी नहीं, जिनका कोई गमखार नहीं, जिनके पास सारो अफ्तार के लिए कुछ नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी रोजेदार का रोजा अफ्तार करवाया उसे रोजा रखने वाले के बराबर अजर सवाब मिलेगा।
اور रोजेदार के अजर सवाब में कोई कमी नहीं की जाएगी। रमजान में नेक अमाल का अजर बढ़ जाता है। जब कोई रमजान में सखावत करता है, सदका और खैरात करता है, तो उसका अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। कितने ही लोग हैं जो रमजान में दस्तरखान लगाते हैं, मसाजिद में दस्तरखान लगाते हैं ताकि कोई भूखा और मोहताज ना रहे। इंसान अपने लिए भी खर्च करता है, अपने खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, सब फना हो जाता है। लेकिन अल्लाह की रजा के लिए जो खर्च किया जाता है वो बाकी रह जाता है। तो आए अल्लाह की राह में सदका और खैरात करें, अपने रब को कर्ज दें। जब हमें जरूरत होगी अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद की, उस दिन हमारा ये सदका काम आएगा। सदका कर सकते हैं आप भी। पानी का एक घूंट, दूध का एक प्याला, खजूर का एक टुकड़ा, खाना, लिबास, फल, आप दूसरों की मदद करेंगे, अल्लाह ताला जन्नत में आपके लिए नेमतों के ढेर लगा देगा। आप अल्लाह की राह में सखावत करना चाहते हैं, आप सदका करना चाहते हैं, दीन की तालीम के लिए, दीन की तबलीग के लिए खर्च कीजिए। दीन की तबलीग का ये कितना बड़ा अंदाज है कि आप मीडिया के तवज्जुह से दीन के पैगाम को फैलाने के लिए खर्च करें। जो शख्स अपना पाक माल अल्लाह ताला के पैगाम को दुनिया के गोशे गोशे तक पहुंचाना चाहता है, उसे मीडिया के नेक कामों में खर्च करना चाहिए। उसे ऐसे जराए पे खर्च करना चाहिए, चाहे वो प्रिंट मीडिया का सिलसिला हो, कुतुब की इशाअत हो, जिसकी वजह से अल्लाह ताला के दीन की हिफाजत हो। शरीयत के 5 बुनियादी मकासद में से बड़ा मकसद है दीन की हिफाजत। दीन की हिफाजत के लिए सखावत करें। जो आपने बचाकर रखा फना हो जाएगा। कितने मालदार आलीशान घर और महल्लात छोड़कर मर गए, कोई नामो निशान न रहा। ये मालो दौलत उनके लिए हसरत, नदामत और अफसोस बन गया। उन्होंने अपने मालो दौलत को सही मकाम पर खर्च नहीं किया। माल जो कयामत के दिन काम आएगा वो सखावत का माल है, वो सदक़े का माल है, और उस दिन ही हर एक को नफा और नुकसान का पता चलेगा। फिर कौन है जो माल की हिफाजत नहीं चाहता? अल्लाह की कसम, सदक़े की तरह कोई माल महफूज नहीं रहता। अल्लाह की कसम, सखावत वाला माल, पाक माल बच जाता है। ज़कात की तरह कोई माल पाक नहीं होता। सखी बन जाएं, अपने फर्ज को अदा करें, दीन की हिफाजत के लिए माल लगाएं। ये रमजान सखावत का मौसम बहार है। एक दूसरे से बढ़ चढ़कर खर्च करें। आप तक जो बात पहुंची है, सारे इंसानों तक जो बात पहुंच रही है, इसके लिए भी माल लगता है। आप आगे बढ़कर इन कामों में मुआविन बन जाइए। आप सदक़े की अजमत और अहमियत को समझेंगे, आप सखावत की अजमत को जानेंगे तो कभी हालात को खातिर में नहीं लाएंगे। तंगी और आसानी हर हाल में खर्च करेंगे। तंगदस्त तो इस बात का पाबंद नहीं है कि वो अल्लाह की राह में खर्च करे, क्योंकि वो तो मुस्तहिक है, माली मजबूरियों की वजह से परेशान है। लेकिन अगर आप नजर डालें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों ने कितने मुश्किल हालात में अल्लाह ताला की राह में खर्च किया। आपको याद होगा खजूर का वो तोहफा जो अल्लाह की राह में दिया गया। रात भर यहूदी के कुएं पर रहट चलाया। ग़ज़वा तबूक का मौका है और रात भर की मेहनत को बच्चों पर, अपनी जरूरियात पर खर्च करने की बजाय अल्लाह के रास्ते में दिया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरें उठाई और सारे माल पर रख दी। कितने ताने मिले थे, लो देखो टिड्डी की टांग, मुट्ठी भर खजूरें लेकर चले हैं सल्तनत रोमा को फतह करने। इंसान को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं वो इतना कम है, इससे बेहतर है कि जब ज्यादा होगा तो उस वक्त सदका कर लूंगा। अल्लाह ताला की राह में गुर्बत में भी खर्च करना है, अमीरी में भी। जब आसानियां हो तब भी खर्च करना है और जब मुश्किल हो तब भी खर्च करना है। खुशी में भी, परेशानी में भी, थोड़ा भी, ज्यादा भी, क्योंकि
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वला युनफिकूना नफक़तन सगीरतम वला कबीरतम वला यक़तऊना वादियन इल्ला कुतिब लहुम लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसन मा कानू यामलून। सूरह तौबा की आयत नंबर 121 है। जो कुछ छोटा बड़ा उन्होंने खर्च किया और जितने मैदान उनको तय करने पड़े, ये सब भी उनके नाम लिखा गया ताकि अल्लाह ताला उनको उनके कामों का अच्छे से अच्छा बदला दे। जो भी इंसान खर्च करता है अल्लाह ताला उसको जानता है। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया तुम जो कुछ भी खर्च करो और जो कुछ नजर मानो अल्लाह ताला उसे खूब जानता है और जालिमों का कोई मददगार नहीं। जुल्म वो करता है जो अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता। इसीलिए अल्लाह ताला ने ऐसे अफराद पर अपनी वईद नाजिल की है। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। दरअसल आसमानों और जमीनों की मीरास का मालिक एक अल्लाह ही है। तुम में से जिन लोगों ने फतह मक्का से पहले अल्लाह की राह में दिया और क़िताल किया है वो दूसरों के बराबर नहीं, उनसे बहुत बेहतर और बड़े दर्जे पर हैं। और जिन्होंने फतह मक्का के बाद खैरात की और जिहाद किया, हाँ भलाई का वादा तो अल्लाह ताला का उन सबसे है और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह ताला उससे खबरदार है। कौन है जो अल्लाह ताला को अच्छी तरह कर्ज दे फिर अल्लाह ताला उसके माल को उसके लिए बढ़ाता चला जाए और उसके लिए पसंदीदा अजर साबित हो जाए। ये सूरह अल हदीद की आयत है 10 और 11। सखी बनना चाहते हैं तो अपने माल और अपनी जान को अल्लाह का अतिया समझें, इस पर अल्लाह ताला का हक समझ लें। जो इंसान अल्लाह ताला की राह में अपनी जान और माल खर्च करेगा, उसको इस्तेमाल में लाएगा तो अल्लाह ताला बेहतरीन मुआवजा अता करेगा, इसके बदले में जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह का वादा सच्चा है। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। बेशक अल्लाह ताला ने मोमिनों से उनकी जानों और उनके मालों को जन्नत के बदले में खरीद लिया है। कितनी बड़ी बशारत है। तो जो लोग अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, जो मोहताजी से डरते हैं, जो शैतान की चालों का शिकार हो जाते हैं, जो इसराफ करते हैं, फजूल खर्ची करते हैं, लेकिन दावत दीन के लिए खर्च करना पड़े, जब अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने के लिए खर्च करना पड़े तो हालात की खराबी का शिकवा करते हैं, वो दुनिया में भी नाकाम और नामुराद हैं और आखिरत में उन्हें कोई बदला नहीं मिलेगा। अल्लाह के वादे को समझ लें, यकीन कर लें, अल्लाह के फजल पर यकीन कर लें। याद रखें शैतान ही बेहयाई का हुक्म देता है, फकीरी का वादा करता है और अल्लाह ताला अपनी बख्शिश और फजल का वादा करता है। इसलिए लोगों के दुख मिटाने के लिए भी खर्च करें और दीन की हिफाजत के लिए खर्च करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिहि व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। सूरह सफ की आयत 10 और 11 है। ऐ ईमान वालों, क्या मैं बताऊं तुम्हें वो तिजारत जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले। अल्लाह ताला पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ और अल्लाह की राह में अपने माल और अपनी जान से जिहाद करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम्हारे इल्म में हो। अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करना बायस एजाज है और खर्च न करना हलाकत का बायस है। हमारा माल इसमें गरीबों का हक है, हकदार का हक न देना जुल्म और ज्यादती है और अल्लाह ताला को ये गवारा नहीं। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया व अनफिकू फी सबीलिल्लाहि व ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका व अहसिनु इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने हाथों हलाकत में न पड़ो और एहसान करो, अल्लाह ताला एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। ये सूरह अल बकरा की आयत नंबर 195 है। आज खर्च कर लें, कल वो दिन आएगा जब दोस्ती रिश्तेदारी काम नहीं आएगी। आज खर्च कर लें, कल कयामत के दिन खरीदो फरोख्त तिजारत और बिजनेस नहीं होगा, खाली हाथ होंगे। यही खर्च किया हुआ काम आएगा, वहां दौलत नहीं होगी कि उसको इस्तेमाल में लाकर जन्नत में चले जाएं। अल्लाह की राह में पसंदीदा माल खर्च करें, बेकार नाकिस फालतू फजूल और बचा खुचा खर्च न करें। जो चीज खुद इस्तेमाल नहीं करना चाहते वो दूसरों को क्यों देते हैं। ये देखें किस जात के नाम पर देते हैं। वो जात गनी है, खजानों का मालिक है, वो रद्दी चीजों को पसंद नहीं करता। याद करें सहाबाए कराम ने कैसे
पसंदीदा माल अल्लाह ताला की राह में खर्च किया था। किसी ने बैरा का बाग जो उसे सबसे ज्यादा पसंद था उसे अल्लाह की राह में सदका कर दिया। किसी ने अपना घोड़ा, किसी ने अपना पसंदीदा खैबर का माल, खैबर की जमीन, फलदार दरख्त अल्लाह की राह में सदका करने चाहे सईदना उमर ने, तो आपने फरमाया असल रोक लो, फल सदका कर दो। पसंदीदा भी अल्लाह की राह में खर्च करें और तैयब भी। बेशक अल्लाह ताला पाक है और पाक चीज को ही कबूल करता है। और सदका करके एहसान न जतलाएं, तकलीफ न दें, रियाकारी न करें, सारा माल जाया हो जाएगा। सदका करें, ये नफ्स के तज़किये का बायस है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं अल्लाह ताला ने ज़कात को माल की पाकीज़गी का जरिया बनाया है। ये बुखारी की 1404 नंबर रिवायत है। खर्च करने से जहां माल पाक होता है वहां नफ्स भी पाक होता है। दौलत से मोहब्बत में कमी आती है, माल में इजाफा होता है। किरदार की तामीर का जरिया है सखावत। सखावत कर लें। अल्लाह की राह में ज़कात देना तो फर्ज है, ज़कात के अलावा भी अल्लाह की राह में कसीर माल खर्च करें। अल्लाह ताला हम सबको सखी बनने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।